almost all the people here is kind of rest day. That means all of us are feeling great and have a lot of power and ready for conduct a great webinars and meetings like this one. So thank you so much once again. Thank you so much for your coming every Sunday, because every Sunday that day of Team Warriors. So that's good. First of all, to all members, welcome to all webinars. This topic is most important. Your upline responsibilities and duties. This is very important. So are you ready? Dear leaders, please raise your hand. Then you are excited now about today's session. Please raise your hands and show your excited level. That fantastic. Oh my God. Oh my God. Huge people are excited today's session. So today's session is most important about your upline responsibilities and your upline duties. एक upline की जिम्मेदारियां और एक अपलाइन की जो ड्यूटी है वो क्या होती है, ठीक है। तो जाहिर बात है आप लोग काम करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग पे, फोरसाज पे, तो इसमें A to Z आपको सारी चीजें जो हैं वो देखनी चाहिए। तो आप लोग डायरी और पेन जो है आप लोगों ने साथ लाजमी साथ रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल एडी, आई आस्क कैन सम टू क्वेश्चन, कैन आई आस्क? Yes, of course, always. Okay. First of all, you know that big give up related to Mio World game. About click the link and participate the your rewards like etc. But some people asking me, so it's a doubt. Some people asking me after 6 day launch the game. After 6 days, launch the game. So please clear this point about related to me world. Yes, absolutely. My dear friends, just like I told you before in many sessions and different meetups, I will tell you the day of the launch exactly for sure in advance. So you will know it like maybe 2 weeks before, at least 1 week. So raffle is just a raffle, and it doesn't mean that we are starting the game in 6 days or exactly amount of the day. So no, it's just a raffle, but raffle is very important. And yeah, you can be one of the winners of that raffle. Raffle is kind of like a process in NFT game launches. So it's kind of necessary, and please participate, and of course you will like it. Thank you so much. Thank you so much, Eddie, about this point is clear. Because some people are asking, it's so funny. Some people are asking, sir, after the 6 days launch the View World game, how can? So thank you so much about these points are clear. So today topic is responsibilities. Dear leaders, आप अपने डायरी और पेन जो है वो साथ लाजमी रख लें। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अपलाइन? आपके जो अपलाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो क्या होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा इंग्लिश की बड़ी खूबसूरत लाइन है, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द अपलाइन टू हेल्प the downline understand the business and guide them to the success. जो अपलाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो अपनी डाउनलाइन को हेल्प करता है, उसके बिजनेस में उसको गाइड करता है और उसको जो है वो कहने के सक्सेसफुल बनाता है। ये अपलाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, ठीक है। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे कि सर रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो हमें पता है बिकॉज हम जो है वो अपलाइन है, ठीक है, और हमें तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पता है। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ यही नहीं होती कि आपने अपने
डाउनलाइन को टीच एंड ट्रेन करना है, उसे बिजनेस के हवाले से अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करनी है, और इसके अलावा आप अपने बिजनेस को, अपनी टीम को ग्रो कर सकते हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये होती हैं कि आपकी टीम के साथ, लाइक अब जैसे यहाँ पे मैं मिसाल दूं सरशदाद की, ठीक है, तो सरशदाद का ऑलमोस्ट 1 लाख समथिंग का नेटवर्क है, ठीक है। तो 1 लाख समथिंग के नेटवर्क में सरशदाद की हर बंदे के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। अब ये हम लोग कहते हैं कि सर ये तो हमारे लेवल 7 पे आता है, लेवल 8 पे आता है, तो इस तरीके से आता है, हमने मतलब इसकी क्यों सारी चीजें करनी है। तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आपने इसको देखना है, समझना है, ताकि आने वाले वक्त में आप लोग एक अच्छा नेटवर्क जो है वो क्रिएट कर अपनी टीम को, अपनी जो आपकी टीम होती है, टोटल टीम होगी, ठीक है, आप लोग उनको इतना मजबूत करें, अगर विद इन आपके ऊपर कोई जो है वो अच्छा वक्त नहीं आता सम टाइम बंदे पे, क्योंकि अच्छा वक्त हमेशा नहीं रहता, ठीक है, वक्त जो है वो बदलता रहता है, अप एंड डाउन्स होते रहते हैं, ठीक है। तो आप अपनी टीम को इतना स्ट्रॉन्ग करें, इतना मजबूत बनाएं कि आने वाले वक्त में इन केस अगर आपके ऊपर कोई ऐसा वक्त आता है, तो वो आपकी टीम आपके साथ सीने जो है ना कंधे से कंधा मिला के जो है ना वो खड़ी हो, ठीक है, कंधे से कंधा मिला के खड़ी हो। आपको इस तरीके से अपनी टीम को सपोर्ट करना है, ठीक है। होपफुली अपलाइन का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप मीनिंग्स आपका क्लियर हो गया होगा। अब एक बड़ी बात आती है, आज तक यहाँ पे किसी को ये नहीं पता होगा कि व्हाट मीन ऑफ अपलाइन। अपलाइन का मीनिंग क्या है, किसी को पता है? जिसको पता है वो हैंड रेस कर दे, सिंपल। अपलाइन का मीनिंग क्या है? यहाँ पे मैंने अनम्यूट करके पूछ लेना आपसे, व्हाट द मीन ऑफ अपलाइन। चलें मैं आपको बताता चलूं व्हाट द मीन ऑफ अपलाइन। अपलाइन का मीन क्या होता है? आई थिंक आज से पहले आपने ये चीज नहीं सुनी होगी या ये चीज नहीं देखी होगी, तो मैं आपको बता देता हूँ कि अपलाइंस का मीन होता है द इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर, और इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर अबाउट a particle independence business owner in a placement line to common science wellness worldwide, ठीक है। मीन्स सिंपल इसका वर्ड ये है कि जो अपलाइन होता है वो इंडिपेंडेंट होता है अपने बिजनेस के लिहाज से, ठीक है, और जो उसके साथ जुड़े हुए लोग होते हैं जो वर्ल्ड वाइड पे हों, जो कॉमन हो, लाइक आपकी सिटी से हो, आपके शहर से हो, आपकी कंट्री से हो, ए टू जी हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जो अपलाइन की मीनिंग बता रहा हूं, वो इंडिपेंडेंट होता है, किसका? अपने बिजनेस का खुद जिम्मेदार होता है, लेकिन उसके साथ साथ जो उसके पार्टिकल मतलब के जो उनके साथ साथ पार्टिसिपेट करते हैं बिजनेस में, जो बिजनेस को रन करते हैं उसके साथ मिलके, तो उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो प्रॉपर उन पे भी नजर रखे और अपना जो बिजनेस है उसको भी कंटिन्यूटली करना है। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे यहाँ पे मौजूद हैं जो अपनी टीम पे डिपेंड करके बैठ जाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल के तौर पे चले मैं लगा लूं, मेरी टीम में कोई अगर एक अच्छा मेंबर आ जाता है और वो आगे से टीम बिल्ड करता है, मुझे से अर्निंग आ रही है और सब कुछ मतलब फिट जनरेट कर रहा हूं, मैं उस पर डिपेंड करके बैठ जाऊंगा। मैं उस पे जो है ना वो खड़ा होके बैठ जाऊंगा कि भाई मुझे बस अब यहाँ से जो है ना वो अर्निंग आ रही है, अब मुझे और नेटवर्क बनाने की जरूरत नहीं। आपको पता है सर से शहजाद जो है वो क्यों कामयाब है? सर शहजाद इसी वजह से कामयाब हैं क्योंकि उन्होंने बहुत सारे ऐसे लीडर्स क्रिएट किए, बहुत सारे ऐसे लीडर्स क्रिएट किए, आज वो इस मुकाम पे अगर $1 लाख अर्निंग की है, ठीक है, तो वो रीजन क्या है? क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लीडर्स को क्रिएट किया है, देन उन्होंने जो है वो कहने के 1 लाख की अर्निंग किया, ठीक है। अब जो आपकी ड्यूटीज होती हैं, लाइक कोई भी हम काम करते हैं ना, लाइक कोई भी हम चीज देखते हैं, समझते हैं, सब कुछ करते हैं, उसमें आपकी कुछ ड्यूटीज होती हैं। आप कहीं पे जॉब करते हैं तो वहां पे आपकी कोई ना कोई, भाई आपने ये करना है, आपने डेबिट, जैसे मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ, मेरी ड्यूटी एक फार्मासिस्ट में कंपनी में जब जॉब करता था, तो मेरी ड्यूटी क्या होती थी? डेबिट समरी, क्रेडिट समरी, कैश समरी इक्वल टू सब कुछ करके जाना था। दैट इज माय ड्यूटी, ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। लेकिन जो आप लोगों की ड्यूटी है बिजनेस में, वो क्या होता है? एक अपलाइंस की ड्यूटी क्या होती है? पहले मैंने आपको बताया अपलाइन का मीनिंग क्या होता है, व्हाट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अपलाइंस। अब आप लोगों की ड्यूटीज क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक अलग चीज होती है, ड्यूटीज एक अलग चीज होती है, ठीक है।
आपकी जो ड्यूटीज होती है, डेवलप आप मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बेस्ड ऑन जिस पे आप काम कर रहे हैं, लाइक फोरसाइट पे काम कर रहे हैं, एक नॉलेज होना चाहिए उसका जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज हैं, और ईच ए टू जी आपको सारी चीजें जो है ना वो मतलब कि आपको फिंगर टिप्स पे आपकी याद होनी चाहिए। देन आप एक अच्छे अपलाइन का मुजाहरा कर सकते हैं, और जब आपके पास यंग ब्लड आएगा तो आप उसे अच्छे से टीच एंड ट्रेन कर। दोबारा रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट इज योर ड्यूटीज डेवलपिंग आ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। आपको मार्केट में देखना कि मार्केट में इस वक्त किस तरीके से चीज चल रही है, मुझे अपने बिजनेस को किस तरीके से प्रेजेंट करना है। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट टू टीच योर ट्रेम एंड देन बस खत्म इससे आगे कुछ नहीं, ठीक है। योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपने क्या करना है कि जो न्यू ब्लड है उसे भी लेके आना है, पीछे जो नेटवर्क बना है उसे भी देखना है, आपको चीजें मैनेज करके मार्केट में। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है? मार्केट में चीजों को देख के अपने बिजनेस को डेवलप करना, अपने बिजनेस को प्रेजेंट करना, ठीक है। उसके बाद क्रिएटिंग आप प्लान, आपको एक ऐसा प्लान क्रिएट करना है जो गेटिंग लीड्स, आपकी लीड्स में हेल्प करे, आपकी क्लोजिंग सेल्स में हेल्प करे, इंक्लूडिंग आपका जो न्यू यंग ब्लड है उसमें लाने में हेल्प करे। उसके बाद सोशल मीडिया प्रेजेंटिंग, अटेंडेंस, अटेंडेंस मतलब लाइक अटेंडेंस, मैं अब सुबह उठ के अपनी अटेंडेंस कैसे लगाता हूँ, मैंने एक चार्ट बनाया हुआ, ठीक है। एक चार्ट बनाया हुआ, लाइक मेरे पास एक रजिस्टर है वो मैंने बनाया हुआ है, उस पे मैंने लाइंस लगा के संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे इस तरीके से अपना शेड्यूल। सुबह उठ के अगर नमाज, समटाइम मैं ऐसे ही झूठ बोलूं, समटाइम मेरी नमाज रह जाती है सुबह की, तो मैं सुबह उठ के वहां पे क्रॉस लगा देता हूँ, ठीक है। अगर आप इस तरीके से चलेंगे आपकी लाइफ भी ठीक हो जाएगी, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी पूरा कर सकेंगे। हाँ, समटाइम स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी चीजें फेस करने को मिलेंगी, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप छोड़ दो, यार मुझसे तो हो ही नहीं रहा। भाई करें, करेंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज का एहसास होगा, ठीक है। करेंगे तो अपनी जो ड्यूटीज हैं जो आप पे मुसल्लत की गई हैं वो उसका एहसास होगा। यकीन करें, मैं अक्सर आप लोगों से कहता होता हूँ कि आपको ये चीजें फ्री में मिल गई हैं, हमारे कंधों पे बोझ पड़ा था, हमने तब इसको स्टार्ट किया था, लेकिन आप इस चीज में बिल्कुल फ्री में आ गए हैं। वो रीजन क्या है? क्योंकि मैंने खुद बीइंग ऑनलाइन पर्सन मैंने बहुत सारे लॉस किए हैं, ठीक है। तो आप लोगों को अपनी जो कहने के सोशल मीडिया प्रेजेंटेशंस हैं उसको अच्छे तरीके से रेडी करना है। हाँ, मेक फोन कॉलिंग्स। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कॉलिंग्स नहीं करते, फोन कॉलिंग, लाइक आप ग्रुप में से नंबर उठा के उनसे बात करके उन पे कॉलिंग स्टार्ट करते हो, उनको जो है वो सारी चीजें जो है वो आप बता सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, और इस तरीके से अपनी जो ड्यूटीज हैं जो मुझे पता है मेरे एक्सपीरियंस के लिहाज से वो मैंने आपको गाइड की हैं, ठीक है। तो अब मैं हैंड ओवर करूंगा सर शदाद की तरफ। जी सर शदाद, वेलकम है, हैंड ओवर टू यू। जी सर, थैंक यू सो मच सर तैयब नवाज। आपने बहुत ही अच्छा गाइड किया। जो जो चीज़ें गाइड की हैं इन्हें अगर आप फॉलो करते हैं तो ये बहुत ही काम की चीज़ें हैं। देखें, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे खूबसूरत बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है। थोड़े से फेलियर हमें ज़रूर फेस करने को मिलते हैं, थोड़े से मसले मसाइल ज़रूर आते हैं, लेकिन उसका मकसद ये नहीं होता कि आप हार मानकर बैठ जाएं। तो अभी आपकी वर्किंग बहुत ज़्यादा स्लो है। मैं कह सकता हूँ कि 70% लोग ऐसे हैं जो इस टाइम काम नहीं कर रहे। हमने उन 70% लोगों को ग्रो करवाना है, उनको जगाना है। और उनको कैसे जगा सकते हैं? उनके ऊपर टारगेट उनको दें। अपलाइन जो होता है उसकी पूरी जिम्मेदारी होती है कि अपनी टीम को पूरा सपोर्ट करे। आपके सामने मैं हूँ, मेरी टांग में थोड़ा सा पेन है सर, फिर भी आपको गाइड कर रहा हूँ सिर्फ इसी वजह से ताकि आप भी कामयाब हो सकें। देखिए, मुझे मसला नहीं होगा, मैं आपको पहले भी बताता हूँ। अगर मैं काम नहीं भी करूंगा मुझे मसला नहीं होगा, बट आपको जरूर मेरे से मसला होगा अगर मैं काम नहीं करूंगा तो। सो आप, जब तक आपके अंदर जोश है, जब तक आपके अंदर ये चीज है कि सर हम काम करेंगे, तब तक मेरे अंदर भी जोश रहेगा कि यार हाँ वाकई में ही ये लोग ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, ये वर्किंग कर रहे हैं, ये टारगेट को पूरा कर रहे हैं। फिर मुझे भी लगेगा कि हाँ यार आप लोगों को काम करना चाहिए। तो इसके अलावा बहुत सारी न्यू कंपनियां इस टाइम लॉन्च हो चुकी हैं। काफी लोग काफी कंपनियों की तरफ मूव हो रहे हैं। मैं अपना जो यूट्यूब चैनल जो है उसको तकरीबन टोटली रेडी हो जाएगा, ठीक है, स्टूडियो रेडी हो जाएगा। उसके बाद मैं प्रॉपर इनके ऊपर वीडियोस बनाऊंगा, तो उसकी टेंशन नहीं लीजिएगा। तो मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि जब तक आपके साथ मैं हूं तो आपको किसी भी चीज की टेंशन की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। मुझे पता है यार आपका कि आपकी अर्निंग कहाँ पे होगी, कहाँ पे आपको फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो अपना माइंडसेट बस अच्छा रखा करें।
और जो आपका अपलाइन आपको गाइड कर रहा है उसको फॉलो किया करें अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो। ठीक है, तो ये न्यू कंपनियां जो आई हैं इनके अंदर क्या चीजें हैं, क्यों आप कुछ लोग वहां पे जा रहे हैं, वो आपको क्या फायदा दे सकती हैं, जो भी चीजें हैं सारी मैं आपके साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा, आपको सारी चीजें गाइड करूंगा। और देखें जिंदगी में जो कामयाबी है ना, जो मैंने सीखा है वो एक चीज को समझने से मिलती है। आज जब आपको याद होगा मेटाफोर्स न्यू न्यू आया था, लॉन्च हुआ था, आपको याद होगा बहुत सारे लोग उसके ऊपर भागे थे, बहुत सारी लाइनों में। यकीन करें जिस टाइम मेटाफोर्स पे गए थे ना, अब वो इधर न्यू प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं। ये लोगों की आदत होती है भागना, कभी उधर कभी उधर कभी उधर, ये अपनी पूरी जिंदगी भागने दौड़ने में गुजार देते हैं। ठीक है ना, इनको कभी भी कामयाबी, इनको कभी भी सक्सेस नहीं मिलती। और जिन लोगों ने कामयाब होना होता है वो एक ही जगह पे दिल लगाकर मेहनत करते हैं। तो आप यहाँ पे दिल लगाकर मेहनत करें, जितना हो सकता है, जितनी ज्यादा हो सकता है इसके ऊपर मेहनत करें। मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, सिर्फ मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, आप अपने दिल से और माइंड से दोनों से सोचिएगा। आपने आज से 1 साल पहले कभी ब्लॉकचेन का नाम सुना था? कभी 1 साल पहले नहीं सुना होगा। मुझे नहीं लगता कि किसी ने ब्लॉकचेन का नाम सुना होगा। 100% आपने ब्लॉकचेन का नाम नहीं सुना होगा। सर मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि जिस चीज को मैं प्रमोट करना शुरू कर देता हूँ ना, वो चीज ट्रेंड में चलती है। अब ये अल्लाह की तरफ से पता नहीं कुछ ऐसी चीजें हैं मेरे अंदर, ये मुझे नहीं आइडिया। तो अब ब्लॉकचेन का मैंने लोगों को समझाना शुरू कर दिया। आज जिस भी कंपनी को देखो, कोई मोहल्ले से उठकर कंपनी बना रहा है, तो जी मेरी कंपनी ब्लॉकचेन है, मेरी कंपनी के ऊपर ब्लॉकचेन है, मेरी कंपनी ब्लॉकचेन के ऊपर कोडिंग है। भाई उनको ब्लॉकचेन का पहले पूरा मायने पूछ लो। आप जो कहते हैं कि ब्लॉकचेन के ऊपर हमारी कंपनियां कोडिंग, उनसे पूछो ब्लॉकचेन चीज क्या है और आपने कोडिंग उसे करवाया कैसे, उन्हें नहीं पता होगा। सो इस चीज से आप बचें जितना ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो अब हर बंदा ब्लॉकचेन का नाम मुंह पे रट लगा के फिर रहा है और ये आपको अपने प्लान दिखा रहे हैं। सो इस चीज से बचें जितना ज्यादा हो सकता है और स्ट्रांग होकर मेहनत करें। जब तक आप स्ट्रांग होकर मेहनत नहीं करेंगे कामयाबी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो खुद को इतना स्ट्रांग बनाएं कि नाकामियां आपसे दूर भाग जाएं। जब नाकामियां आपसे डरने लग जाएंगी ना, फिर आपकी कामयाबियां पक्की हैं। सो नाकामियों को ये जो होते हैं, हमारा डर होता है, हमें इसे भगाना है। काफी लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं, सर हमारी टीम नहीं बनती। आपकी टीम इसीलिए नहीं बनती कि लोग खत्म हो गए या फोर्सेज को कुछ समझना नहीं चाहता। आपकी टीम इसीलिए नहीं बन रही क्योंकि आपके अंदर स्किल्स नहीं है, आपके अंदर बोलने का तरीका नहीं है, आपके अंदर गाइड करने का तरीका नहीं है। सो अपने आपकी अपनी स्किल्स इंक्रीज करें। अगर आपको ये लगता है कि कोई कंपनी, मैं आपको पहले बात करता हूँ कि कोई भी दुनिया के अंदर कंपनी ऐसी नहीं है जो आपको फ्री बैठे पैसे दे, क्योंकि किसी का इतना बड़ा नहीं है बिजनेस कि आपको कहें कि आए भाई यहाँ पे $5 $10 इन्वेस्ट कर लें और सोए रहें, आपको पैसे आते रहेंगे। ये जो आपको सुना रहे होते ना कहानियां, क्या हो जी अब यहाँ पे विदाउट वर्क भी इनकम करो, तो ये सिर्फ आपको पागल बनाने के लिए, आपका पैसा लूटने के लिए। हाल ही में कुछ कंपनियां भागी थी, मैंने उनके ऊपर तस्दीक की थी। ठीक है, मैंने पहले भी बता दिया था कि भाई कुछ नहीं पड़ा इनके अंदर, सो बचो इनसे। वो कितना कितना पैसा लेके भागी थी, आप खुद बताओ। लेके भागी थी ना 5-5 अरब, किसी का 10 लाख गया, किसी का 20 लाख गया, किसी का 50 लाख गया। फिर क्या हुआ था, फिर वही रोने धोने, फिर स्टेटस लग रहे थे लोगों के, फिर लोगों की वीडियो आ रही थी, लोग रो रहे थे कि सर ये हो गया हमारे साथ, ये हो गया। प्लीज इस चीज को आप खुद भी समझो, आपके अंदर अल्लाह ने दिमाग दिया है, उस दिमाग का इस्तेमाल करो कि हमें जिंदगी में कामयाब होने के लिए क्या करना पड़ेगा। हमें जिंदगी में कामयाब होने के लिए काम करना पड़ेगा, क्योंकि कामयाबी लफ्ज को अगर आप गौर से देखें तो कामयाबी का पहला जो वर्ड है वही काम है। ठीक है, तो फिर कंप्लीट होके कामयाबी बनता है। सो काम करना पड़ेगा। काम वैसे तो काम, अगर बात करूं, काम मजदूर भी करते हैं, मेहनत मजदूर भी करते हैं, लेकिन आपने मेहनत एक सही जगह पे करनी है। जैसे कि फोर्सेज के अंदर मैंने की, आप भी फोर्सेज के अंदर करें, आपकी ये सिस्टम दिनों में लाइफ बदल लेगा। देखिए अभी कल की बात करूं, लोग बहुत परेशान होंगे कि यार कल क्या दिन जाया हो गया, लेकिन हमारी खुशकिस्मती चेक करें, मेरी कल की भी इनकम तकरीबन $35-40 थी। ठीक है, पाकिस्तानी लगभग 10,000 से ऊपर थी। मैंने कल का भी 10,000 से ऊपर कमाया। और यकीन करें ये जो दूसरी कंपनियां हैं ना, आप किसी भी कंपनी में चले जाए, वहां पे लोग 10,000 कमाने के बाद स्टेटस लगा रहे होते,
और मेरी इनकम जिस दिन 50,000 से ऊपर ना हो, मेरा दिल नहीं करता स्टेटस लगाने को। ये सूरत हाल है, ठीक है। तो ये फोर्सेज की पावर है कि 15-20 हजार यहाँ पे आम सी रकम माना जाता है। 15-20 हजार कमाने वाले बंदे को आम सा माना जाता है, लेकिन जो बंदा, आप सोचें, जहाँ पे 15-20 हजार कमाने वाले को इस तरीके से समझाया जाता है, वहां पे लोग क्या कमा रहे होंगे। सो प्लीज इन चीजों को आप अपने माइंड के अंदर रखें और इन्हीं चीजों को आगे लेकर चलें, और अपनी डाउनलाइन, जितनी भी अपनी डाउनलाइन है, सबको अच्छा गाइड करें ताकि वो भी ग्रो करे। जब तक आपकी डाउनलाइन ग्रो नहीं करेगी, आप कभी भी ग्रो नहीं कर सकेंगे। अपने दिल के अंदर और माइंड के अंदर बात को बिठा ले, डाउनलाइन को ग्रो करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये नहीं कि डाउनलाइन को ग्रो करवाओ, खुद भी ग्रो करो। अगर अब आप कहो कि मेरी सर 10 बंदों की टीम है, वो काम नहीं कर रही, तो ये चीज भी गलत है, ठीक है ना। आपको डाउनलाइन को भी गाइड करना है और उसके साथ 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 आपको खुद को भी वर्किंग करनी है। अब मैं आपको आज छोटा सा टारगेट दे रहा हूँ जिसको आपने पूरा करना है। अभी आप फेसबुक पे पोस्टिंग करें, शेयरिंग करें, और 3 बजे वाला जो हमारा सेशन है उसके अंदर आपने आना है। और 3 बजे वाले सेशन के अंदर आपने 20 मेंबर्स को लेकर आना है, ठीक है, जो ऑनलाइन बिजनेस समझना चाहते हैं। और 20 लोगों को लेकर आना है, और इस तरीके से लेकर आना है कि वो मीटिंग के अंदर लास्ट तक बने रहें, ठीक है। अगर आपको गाइडलाइन का तरीका नहीं आ रहा तो आप यूट्यूब पे सर्च करें, हाउ टू डील विद ए न्यू कस्टमर। क्या सर्च करना है, या तो ये सर्च कर लें, आसान लफ्जों में आपको बता देता हूँ कि हम कस्टमर को डील कैसे करें, सर शहजाद वट्टू। जब आप ये सर्च करेंगे तो आपके सामने मेरी 3-4 ट्रेनिंग टॉप पे आ जाएंगी। उनमें से जिसके अंदर ज्यादा व्यूज हैं, जिसको ज्यादा व्यूज मिले हैं, उस ट्रेनिंग को आप चेक करें, उस ट्रेनिंग को सुने। उस ट्रेनिंग को सुनने के बाद आप कस्टमर को डील करने का तरीका सीखें। अगर आपको सोशल मीडिया यूज करना नहीं आ रहा तो ऊपर सर्च करें सोशल मीडिया यूज बाय सर शहजाद वट्टू। आपको सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेनिंग मिल जाएंगी। अगर आप स्लॉट का समझना चाहते हैं, आप यूट्यूब पे सर्च करें स्लॉट्स की वर्किंग, आगे मेरा नाम लिख दें सेम, तो आपके सामने स्लॉट्स की वर्किंग आ जाएगी। सो बहुत इजी है काम करना यार। आप जो चीज चाहें उसको सुन सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, अपनी स्किल्स को कंप्लीट कर सकते हैं। अब यहाँ पे सूरत हाल ये है कि हमें एक छोटा सा फार्मूला चाहिए हो। हम पूरे यूट्यूब को छानते हैं लेकिन वहां से नहीं मिलता। अब मैंने हाल ही में मेरे इंस्टाग्राम पे मैंने सोचा कि क्यों नहीं इंस्टाग्राम पे एक ब्लू टिक होना चाहिए, एक प्रोफेशनल लगता है बंदा। तो मैंने उसके पैसे भी पे कर दिए, लेकिन मेरा ना ब्लू टिक नहीं लगा। यकीन मानो, मैंने, मेरे जो माइंड के अंदर है, मैंने कोई 15-20 वीडियोस देखी होंगी, मुझे एक में भी कोई कंप्लीट, वो कोई होता ना, प्रॉपर हल नहीं मिला। रीजन क्या है कि यहाँ पे हर बंदा अपने व्यूज के लिए बैठा होता है, लेकिन यहाँ पे चेक करें कि आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज अच्छे तरीके से गाइड की जाती है ताकि आप इस चीज को समझ सकें, ठीक है। तो आपने इस चीज को समझना है प्लीज। और 3 बजे वाली मीटिंग के अंदर आपने अपना अच्छा से अच्छा रिस्पॉन्स दिखाना है, ताकि हमें ये ना लगे कि यार हमने जो गाइड किया वो जाया हो गया, हमने जो आपको समझाया वो जाया हुआ। सो आपने 3 बजे वाली मीटिंग में अपना एक अच्छा रिस्पॉन्स दिखाना है। जी सर, तैयब एडी कुछ गाइड करना चाहेंगे, पूछिएगा। Hello, Eddie. We are explaining to them that you should explain your downline and guide them. Even you are making a good income in Fortsage. So that is your upline responsibility. Develop our marketing strategy like social media, etc. What you can say, what you can guide me also, Team Warrior, about upline responsibilities and duties. Yeah, thank you so much. Well, actually, I hope you already told the audience in Urdu all the things they need to know. But actually, if you think I can add something, yeah, I will share some, some main points as for me. So I think every time when you're building your team, when you're just starting, you always take take attention to everyone, to all of your teammates. So you're like close friends to your teammates because there are only 2 of them or 5 of them or 10. I mean, that's just small team. That's why you're paying attention to everyone. But the duty and your great responsibility when in the future when your team becomes
real big, huge, like this one, like Team Warriors, you still keeping same attention to everyone. So it's like if you ever seen the movie Alexander with Colin Farrell, he was great warrior and he was like a father for his soldiers. That Macedonian Alexander the Great. So that means your downlines, they're like your little brothers, but you should always remember that every one of them is a leader as well. He is already a leader. You know, sometimes we see kind of misunderstanding here in Forsage when everyone calls himself as a leader, and it sounds like a president, as an owner, as a big guy, as a chief, but it's not. You are a leader only of your team. So that means even if in your team thousands of people, you should always remember that each of them is also same leader like you. But it depends, and it's your duty to teach him how to be the same leader like you are. So it's always about respect, showing respect. Always, it's always about trainings. So you just, how can you how can you wait a big a big win from your students, from your newcomers, from your teammates, if you didn't teach them well? So first of all, you teach them, you treat them, you show them how to do, and you teach them how to be a leader. So it's approximately, it kind of, for me, seems like family things. Like when you become a parent, you teach your kids, and after that, when teach grow up, they respect you, they love you, they remember about you. So in Forsage nowadays, we have a lot of problems only because of one reason. Sometimes leaders, I just can't call them leaders, bad people that call themselves the leaders, they invite newcomers and they just never teach them and never explain. How many times we receive in official international chat messages like, I already bought all the slots, no income at all, Forsage is a scam. And that's only because his fault, lead his upline. So your duty as an upline to teach your downline, to show him the way, and better, like if you feel that you are strong upline and you want to be strong many months or years, better, it's like a building a house. So if you build a house with the plastic bottle, one day it will just gone, it will be broken. But if you make that house from the stone, from the strong, one day you will see it will be even better. That means better invite someone and explain to that person that this is tough business. You need to invite, it's not easy at all. And but if you will study this this great opportunity, if you will learn the things I try to train you, one day you will be same leader as me. So that means maybe 9% from 10, they will just quit. They will say, okay, it's too hard for me, I just can't handle, I have no time, I have no money, and first of all, I can't invite people. So 9 from 10, they will tell you bye-bye. But that only one from them, he will stay and tell you, I will win, I will be there still, even if it's night, even if it's no newcomers, I will be there, and yeah, I can handle it. So if you just bring to your team 10 people like that, you will be happy always.
because they know how to build a team. They know how to build same people like you are. Well, as for me, your duty as an upline is like this. So that's it. Thank you. It's just advice. It's not like go and do what I'm saying. No, it's just my opinion. Okay, okay. It's just your opinion. It's not a work on it. Let's go and that's so thank you so much, Eddie, about guideline this upline duties and related to responsibilities. Thank you so much. और जी सर शायद आप मीटिंग को एंड करना है. Thank you. जी सर, थैंक यू सो मच एडी. एंड मीटिंग हम क्लोज करते हैं यहाँ पे. तो ये थी वो चीजें जो आपको ग्रो करने में आपकी बहुत ज्यादा मदद कर सकती हैं. सो प्लीज इन चीजों पे आपने फोकस करना है, गौर करना है, ताकि आप भी एक कामयाब इंसान बन सकें. सो यहाँ पे हम अपनी मीटिंग को क्लोज करेंगे. आपने 3 बजे वाली मीटिंग में अपना रिस्पॉन्स दिखाना है. कल मैं आपका रिस्पॉन्स इसी 10 बजे वाली मीटिंग में चेक करूंगा कि आपने कल कितना काम किया था. सो हम टारगेट के ऊपर चलेंगे, टारगेट को लेकर चलेंगे, तभी हम एक कामयाब इंसान बन सकते हैं. ओके एडी, बाय बाय. Thank you so much, Eddie. Okay, bye bye. Bye, my friends, my family. I love you all. Team Warriors is the greatest team